Good evening, everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to this Yoga Vashisht knowledge series session and study group. We discuss these things in Marathi, Hindi, and English. So multilingual language. नमस्ते, मैं आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ स्टडी ग्रुप के इस इवनिंग सत्र में 13वां सत्र आज हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सभी का स्वागत करता हूँ। So we are recording this session. It will be uploaded on YouTube. Right now we are live on Facebook as well. तो अपने जो YouTube के सारे व्यूवर्स है, Facebook के सारे व्यूवर्स है और अपने जरे Zoom के पार्टिसिपेंट है, इन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। सो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके गुरु वंदना के साथ आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करेंगे। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, अपनी आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना करें, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने अंदर जागृत होने वाला विवेक, बुद्धि, अपने स्मृति पे तैयार होने वाले इंप्रेशंस, और यदि अहम का थोड़ा भाव अभी भी बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें। अपने सारे संकल्प और प्रार्थना गुरु चरण में अर्पण कर खाली हो जाए। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Jai Gurudev. So let's begin with today's session. Those who are new here, I just want to let you know how we operate this study group. The reason we are calling this as a study group, that there is no one single person here who just speak and you listen like a webinar. No,
We all are there together as a team. We initially from 8 to 8:30 we go through this Yoga Vasishtha knowledge in the form of audiobook. We have English audiobook, we have Hindi audiobook, and as we do not have any Marathi audiobook, we just actually read through it. Then once that is done, at 8:30 we go live on Facebook and also record this session so that it will be useful to some more people in future. That's what the purpose behind it. And then we just kind of present the summary of whatever we have read through. Then we open this session for everybody to contribute based on your understanding, because the same sentence would actually mean a different viewpoint for different person depending upon different time. Because even if you yourself read this book next time or listen to this knowledge next time, it would probably mean something else to you. So we respect and honor and everybody's contribution and opinion about it or their takeaways. So we discuss this together as a team. And then we also kind of pick up some question and answers. And anybody who would like to answer that question, we allow them to answer it. So it's kind of study group. We are formulated this and we are progressing on this path. So today we are on 13th session. Till now, we have already seen two chapters. The first chapter was related to Prabhu Ramchandra Ji. This basically Yoga Shishta is the dialogue between Prabhu Ramchandra Ji and Vasishtha Muni. Here, Prabhu Ramchandra Ji, after traveling throughout the different parts of the country, he comes back and he goes into dispassion. He is now experiencing that dispassion in his life. So because of that, he is not feeling interested in doing all the worldly activity. Because of this, his father Dashratha becomes worried, and then he put up this point in front of Vasishtha Muni. Vasishtha Muni tells us that there must be something, there must be some reason behind it. Because of that, these is all things happening. When certain big things has to happen, there will be symptoms like this. Then during that time, Vishwamitra arrives and requests to take Rama along with him because he wanted to perform some ritual. And then Dasharatha happens to tell the whole story about Rama to Vishwamitra. He calls him in the court. Now that is where Rama explains his dispassion. So those moments were so in depth of his words, and because of his money and whatever the thing that he shared out of his own experience, no, everybody is felt stunned. Everybody felt very depth of knowledge is being spoken here like that. No, even the people who have studied this scripture, the lot of tenas and tapacharya, even they are not able to express it. It was that kind of situation. And now many people, even the around people, जैसे होता है ना अपना Facebook, YouTube पे viral हो जाती चीजें. So similarly, it become viral, and all the other Rishiminis or Devgan, Yaksh, Kinnar, they all gathered. Now all they are looking forward that what is the knowledge that God they are going to seek now, because Vasishtha Muni is going to share the knowledge now, because he has raised such a beautiful questions. It's very relevant question to even today. When we live our life, even those questions are relevant to us also. And that point of time, then Vasishtha Muni and Vishwamitra, they start contributing. And there is a story of Shukadeva, how the same situation of Rama is also seen in the when Shukadeva wanted to achieve liberation, and he was looking for this Atmagyan, self-knowledge. Then Vishwamitra requests Vasishtha Muni to kindly come forward and then start sharing the knowledge, so that the ignorance of that little bit of ignorance here and there, because Rama is already reached that stage where he is now completely in a state where he is willing to receive and imbibe and implement that knowledge in life. But not yet. He is just asking questions. There are some doubts. So similar kind of situation happened in Shuka's life also. So the story goes then where Vishwamitra requests Vasishtha Muni to explain, and that is where Vishwamitra start sharing the knowledge, whatever he got from his own father, Brahma. So that is how this begin, and then he explains us the importance of our efforts or Purushartha in our life. That is very important. What is Purushartha? So Gurudev also explained it is as a Dharma, Artha, Kam, and Moksha. These are the four things that every being on this planet, if you are born as a human, needs to have this as a Purusharth
to achieve that final thing, na? Mukti, liberation, moksha. That should be our goal of our life. Now, how to do this purushartha? What are all the things that will help us? So, another four dwarpal, another four pillars has been given to us here, and those are shama, peace of mind, which is attained by implementing dhamma, that is self-control, and then we got to also have our thoughts, our vichara, no, purified. That viveka, buddhi, and that vichara is purified form. Now, what to do? That shuddha vasana and malin vasa. What is that discrimination that vivek has to jagrut? Na? So that can come through vichara. No? So that is a very, very important aspect that is also been also told, that is a second aspect, that as a moksha ke char dwarpal hai bataya, this is the second aspect that we need to really consider. The third and fourth is essentially santosha, which means contentment, and the last one is sadhu sankati, which means the company of the good people, or the satsang, the being with the truth. That is very, very important. So these are the things. So till yesterday we have been discussing and hearing or reading about those 2 points which we discussed day before yesterday and yesterday. And today now we will look into these 2 other aspects of moksha ke char dwarpal, that is santosha and sadhu sankati. So let's begin with santosha. What is this santosha is? How this santosha is defined? If someone is already having that contentment, how they behave, no? What are their daily routine in life, no? All these things will touch upon. So let us first start defining or understanding what santosha means. Santosha means that trupti, that contentment, that anand, that happiness within, that I have been given everything that I needed to remain calm, to remain happy. All these things that defines as a santosha, as a contentment. Trupti bhi ise kaha jata hai. So that is probably a definition of santosha is what we can say. No? Then how do we recognize it? What are the qualities of those who have experienced and experiencing and continue to experience the santosha and the contentment? So here we have been told, Vishishta Muni says that we have an intellect, we have that buddhi. So now if we see that whether that particular buddhi is able to recognize what is good and bad, it is able to recognize what is pure and impure, it is able to recognize what is permanent or impermanent in life. And then whatever we have in our life, no, are we contented with that? Now there is a, let's not get confused with that the person who is having santosha, they don't seem to do their actions. No? They are still dynamic in their action. They are still doing all their karmas, their routine. But if you just go and be in their presence, you will see that they are satisfied. They are content with whatever they have. They are content. Another thing, here it is explained that the one who have this, whatever that we possess, we probably have our home, we have our car, or whatever the objects or the situation or the people that we have around, which we belong to them and they belong to us. No? Related to that, there is no asamadhan. That means like non-contentment about it. No, oh, I have this much only. Why I am not having more? That kind of thing doesn't say. You are not asamadhani there. You are not. You are not discontented, no? Uncontented. You have that contentment with whatever you have. No? Then also it is not. Another thing that has been told here is that whatever you do not have, no, what aprapta is what you have, and whatever you have aprapta means you have yet to get it, or you feel that okay, you are not possessing it. Prapti is what, anyway this all everything belongs to us, no, we belong to this, no. But then again feel कि मुझे प्राप्त करना है, I want that, no. That's something which even if it is not there today with us, for that also, for example the liberation or the moksha,
something like we are still walking on the path. We are work in progress model. But even towards that thing, which is aprapt, for that also there is no feverish in mind. No, उसके पीछे से हम लोग ऐसे पागलों की तरह भागते नहीं दिखाई देते. We still do. We still put your karma. You still putting your 100%, but not in the pursuit of happiness. This is something. If you have not yet done Art of Living course, it would be my sincere request for all of you to do the Art of Living course. These things will be much more explained in a better manner in the happiness program. So it is not the journey of pursuit of happiness, rather than it is the journey of being happy and then pursuing whatever you wanted to pursue. No? So whatever is prapta, having contentment about it, whatever is not yet aprapta, whatever you are not yet or you are yet to get, even for that also there is no feverishness in mind. There is no, oh, I want it, I want, and I'm in great rush to want that. No? So there is a very beautiful story that comes in Narad Bhakti Sutra. Gurudev shares this story, which is very relevant here. What that contentment in life, or that santosha in life. So the story about is Narada. Narada is a rishi sage. He's called canonical rishi. He always creates some mischiefs, and then but ultimately it will turn out to be very good. So he goes to a rishi who is being doing a lot of tapacharya from so many 30-40 years. So he goes and says, he look, I've been doing so good seva and all this and tapacharya, all yoga, pranayama, meditation, you have been regularly doing the pujas and everything. Now Narayana sent me, Lord Vishnu has sent me, and he has told to pass on this message to you that he is very pleased, and now he has given one boon, आशीर्वाद के तौर पे उन्होंने एक वरदान आपको दिया है, that in the next 3 lifetimes, not more, just 3 lifetimes, you will be liberated. You will be done. You will be moksha. You will attain the liberation. By listening to this sage gets so-called sage sadhu. He gets shaken up. I am doing this from last 30-40 years, and look at here, what I got. Oh, another 3 lifetimes I have to keep on doing this. Nothing doing. He just drops it. He gets angry and he left everything and leave from there. Now the Narada goes to that another young boy who is also in bhakti. He is fully devoted to divinity, and he goes and pass on the same message to him, and then tells him that, see, he doesn't tell that 3 lifetime. He says that look at that particular tree. How many leaves are there on that particular tree? You will take that many lifetime, and after that you will be also liberated. You'll be free. And by listening to this message from the divine himself, the boy start dancing in ecstasy. वो नृत्य करने लगता है, ऐसे पूरा आनंद से झूमने लगता है. Now Narada is confused. What is this? That guy who has been doing this, I told him just 3 lifetimes. He just got angry and he left. And look at this boy. I'm telling you that how many, I can't even count those number of leaves which are there on that tree. And look at him, he's dancing. And then he happened to ask him, what has happened to you? Like, okay, look, there are so many crores of trees on this planet. So many of them, uncountable trees are there. But look at divine. He is so compassionate. He is so kind enough. He just said one. He could have said more. No? He could have said 1,000 trees. But see, he just said one tree. So as his words never falls, I at least have an assurance that after all these number of lives, I will be free. Because without his kripa, anyway, that's not going to happen. It has been said that the very moment he becomes liberated, the very moment he becomes enlightened. So those are the ways that having that santosha in whatever we have. 3 lifetimes the sage did not get satisfied. He got that vardhana, despite of that he was not satisfied. And here there is a person who is a number of life that you have to take, and still having santosha, still having that contentment, that trupti in life, and the very moment becomes enlightened.
So we need to have that thing. Whatever we have, whatever little more, doesn't matter. If you have that trupti, that santosha, then you really have that in life. You are almost close to attaining. It's like moksha swarup isko bola hai. This is what moksha is. Moksha is not that once you die and then you'll get it. No, that also exists as a videha samadhi or videha moksha. But sadeha samadhi, sadeha moksha is that attaining that with this pancha mahabhuta se jo bana hai sharir, with this body. Sadeha and vidya. So attaining that. So it is possible to do that. The one who feel that santosha, that santushti in life, are almost near to moksha, is already attained it. So very beautiful. So when this kind of moksha or this kind of santosha is attained by someone, then what is their behavior towards life? So here it is very beautifully explained that such kind of people in their life, see, they are not too much excited. No, if something they get, they are not too much excited about it. बहुत ज्यादा हर्ष नहीं होता उनको. They are not very excited about it. Neither they are asamadhankarak, means whatever they don't have complaint about it. They don't have regret about it. Or I got this much only. Oh, I got this only. Look at that. He got roti and I got bhakri. Look at that. He got this panchapakwan and I got this sukha roti. No. Whatever is there, they are content. Today, if something pancha mahabhog bhi aapke सामने रख दिया, till you are happy eating it. Tomorrow कल जाके कोई सूखा मुट्ठा भाकरी रख दिया, चटनी रख दिया, still you are smiling, still you are feeling contented. Those are the qualities. Neither harsh nor too much excited, nor you are feeling discontented, non-contented about anything in life with whatever you have. Neither such people have that attraction, that feverishness, that cravings towards what they don't have. They want that, probably they are working on it, but there is no furiousness, there is no great hurry to achieve anything in life. But it's okay, you are just working, you are giving your 100%. Okay, jab chahiye tab mil jayega. Whenever you feel like you get it, you will get it. So that is about santosha. So that is how the qualities of those people, that is how they behave in this worldly world. Then it is also been said that when such people, you go into their aura, unke sanidhya se, the moment you are in the vicinity of such people, you start experiencing that joy. Have you noticed that when you go near to the kids, the innocent kids, which are full of joy, bliss, and enthusiasm and love, you look at the innocence and love which is there in the eyes of a child, how innocent they are. They will look towards that mother. You just look into their eyes. So much of love is just there, in their eyes. So when you go into the vicinity of such people, for no reason you start feeling being loved. You, for no reason, you start feeling happy. You, all your questions, all your doubts disappear in their presence. Those are the symptoms of the people who are really experiencing this joy. Haven't we noticed this? Those who have done doubling course, or those who have guru in their life, and when we are in the vicinity of the master, how is our taste for consciousness? That space element is so dominating. You just feel joy. You just feel like dancing, expressing your happiness. You completely feel that santosha. It's so contagious. So that happens. So when you are in the vicinity, it is being said when in the form of when Buddha, Mahavira, they were experiencing that depth of that peace, that for Shama, Sham is there. So they were so contented about things. They were so calm in their life. So it is means that even the 1 kilometer, 2 kilometer of area, even the wild animals, they used to drop there. Wildness. So that santosha, that trupti. So these are some of the symptoms when you go into the vicinity of such people around you. So इसको अभी थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो अपने मोक्ष के 4 द्वारपाल यहाँ पे बताए गए, तो उसकी फिर कहानी पूरा जो योग वशिष्ठ जो है वो डायलॉग बिटवीन अपने जो प्रभु रामचंद्र के वशिष्ठ मुनि, इनके बीच में ये संवाद होता है
पहले प्रकरण में हमने देखा कि किस तरह से प्रभु रामचंद्र जी अपने वैराग्य को वर्णन करते हैं और उस वैराग्य को सुन के सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किस तरह से कैसे कैसे वर्ड्स यूज करके यहाँ पे अपने वैराग्य का वर्णन प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। तो सारे लोग वहां पे फिर जमा हो जाते हैं। विश्वामित्र भी कहते हैं कि इनकी जो स्थिति है, मन की स्थिति, वो व्यास मुनि के जो पुत्र थे शुक्रदेव, उनके जैसी ही है। और फिर विनंती करते हैं वशिष्ठ मुनि को कि कृपया इनका मार्गदर्शन करें, थोड़ा बहुत जो इग्नोरेंस यहाँ पे वहां पे है उसको थोड़ा निकाल दे और उनको फिर आप पूरा आत्मज्ञान का जो मार्गदर्शन जो आपके पास प्राप्त है, आप तो आत्मज्ञानी हो, कृपया इनका मार्गदर्शन करें। वहां पे फिर वशिष्ठ मुनि जो भी ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त होता है, उनके फादर, वो फिर उनके साथ प्रभु रामचंद्र के साथ शेयर करते हैं। तो पहला सूत्र बताते हैं कि ये जो दैव और जो अपना पुरुषार्थ होता है, कर्म होता है, उसमें जो अपना प्रेजेंट जो कर्म होता है और जो पुराने जो कर्म होते हैं उसमें से जो बलवान होता है वो फिर जीत जाता है। तो अपने 100% कर्म करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बोलते हैं पुरुषार्थ के बारे में, पुरुषार्थ करना अपना बहुत जरूरी होता है। तो गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि पुरुषार्थ ने क्या, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये अपने पुरुषार्थ के 4 अपने पहिए वहां पे बताए गए कि हमने जीवन में ये होना चाहिए, अपना वो पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। देन अपने को और यहाँ पे जो मास्टर की जिसको बोला जा सकता है और जो गुरु के लिए इसको बोलते हैं कि 4 द्वार, मोक्ष के 4 द्वारपाल हमें यहाँ पे बताए गए। कौन से है मोक्ष के 4 द्वारपाल? तो जो मोक्ष के 4 द्वारपाल में बताए गए कि अपना जो शम है माने अपना शांत मन, देन अपना जो दम है, दम माने जो विषय होते हैं उनके प्रति जो अपना मन भागता रहता है इधर उधर, उसके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल होना, अपना उसके ऊपर कंट्रोल होना, वो दम। तो दम के थ्री जो अचीव किया होता है श्रम, शांति का जो अपना ये होता है, वो एक पहला मोक्ष का द्वारपाल बताया। देन दूसरा बताते हैं फिर जो विचार, बस बहुत सारी चीजें, अपना जो विवेक रहता है, अपने जो विचार रहते हैं, अपनी जो बुद्धि रहती है, उससे ही वो होता है, वो ही परिवर्तित होता है अपने एक्शन से। तो मन में विचार आते हैं, विचारों से ही फिर अपने एक्शंस प्रेरित होते हैं। तो ऐसे विचार ही तो हम लोग प्रार्थना ही करते हैं ना, शुरुआत करते गुरुदेव से न, बोलते कि वो जो विवेक है अपने मन में, जो विवेक जागृत होता है वो भी आपकी कृपा से ही हो। अपने मन में जो विचार आते हैं वो भी आपकी कृपा से ही हो, प्रार्थना ही करते हैं। तो उस तरह के जो विचार है, जो वो शुद्ध और मलिन वासना में हमें डिस्क्रिमिनेट, जो विवेक वो हमें उसमें समझाने में कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या रियल है क्या अनरियल है, क्या परमानेंट है क्या इम्परमानेंट है, ये शरीर इम्परमानेंट है, हम जो है वो परमानेंट है, किसी ने कुछ बोल दिया वो इम्परमानेंट है, उनका जो आपके साथ कनेक्शन है, जो बिलोंगिंगनेस है वो परमानेंट है। नो परमानेंट क्या है, इम्परमानेंट क्या है, नो ये काल जो है वो परमानेंट है। सो ये काफी सारी चीजें, तो ये इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसका जो विवेक है, यह जो विचार है ना, यह हमें जागरूक होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। ये हमने कल और पैसों भी देखा। आज का जो अपना सब्जेक्ट है उसके ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वो है मोक्ष के दूसरे द्वारपाल। तो तीसरा जो बताया वो है संतोषा ना, संतोषा मीन्स वो कंटेनमेंट, वो तृप्ति अपने अंदर जो होती है उसे संतोषा यहाँ पे कहा गया, कंटेनमेंट जिसको बोल सकते हैं। एंड देन अपना जो नेक्स्ट है वो साधु संगति, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, संतोषा माने क्या, किसको हम लोग संतोष कह सकते हैं? तो जो है अपना, इसके थोड़े डेफिनेशन के तौर पे देखा तो उसकी जो अगर व्याख्या कोई करना चाहे संतोष की, तो संतोष कह के किसको हम लोग बोल सकते हैं कि संतोष है मन में? तो बोलते हैं कि जिसको, जो जिसके पास है और जो नहीं है, कुछ हमारे पास होता है, कुछ हमारे पास नहीं होता है। तो जो हमारे पास है उसके प्रति हम लोग क्या असमाधानी है क्या? तो बोलते जिनको जो संतुष्ट रहते हैं वो जो अपने पास है उससे असमाधानी नहीं होते, उनके उसमें समाधान होता है, और असमाधानी भी नहीं होते, कुछ रिग्रेट भी नहीं होता है, और जो होता है उसके प्रति उनके मन में बहुत हर्ष भी नहीं आता। ऐसा नहीं कि बहुत एक्साइटेड फील करते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है, ना हर्ष है ज्यादा, ना असमाधान है, वो समाधानी है, वो तृप्त है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल स्टोरी गुरुदेव भी बताते हैं इसके बारे में कि वंस अपॉन अ टाइम ऐसा होता है कि जो अपने एक व्यक्ति रहते हैं और वो, उनको लॉटरी का टिकट लग जाता है।
अभी वो लॉटरी का टिकट लगता है तो वो उसको सह नहीं पाते, मतलब अरे क्या कैसे होगा। बोलते ये इसको तो मैं अपने जो हस्बैंड है उनको बताऊंगी तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तो कैसे इसको डील करें, इतना बहुत बड़ा लॉटरी का टिकट है। तो उनको फादर के पास लेके जाते हैं चर्च में, और फिर वहां पे उनको पूरी स्टोरी बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसी ऐसी लॉटरी लगी है, बहुत बड़ी कीमत है इसकी, तो बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। तो ये मेरे हस्बैंड है, कृपया आप इन्हें भले मार्गदर्शन करें, और फिर जैसे वो उनका मन शांत हो जाएगा आपकी सानिध्य में आएंगे तब हम उनको वो बताएंगे, तब फिर उनको कोई वो हार्ट अटैक वगैरह नहीं आएगा। तो फिर होता है, फिर वो चर्च में फादर जो रहते हैं उनको वो बड़ा समझाते हैं, पूरा ज्ञान व्यान देते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा पूरा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, इट्स ओके, अच्छी इसमें से अच्छे काम भी हो सकते हैं, उसको देखो, ये ऐसा कुछ कुछ उनको बताते हैं। तो ये सुन के ना वो एक तो पहले बहुत खुश हो जाता है कि चलो भाई लॉटरी लग गई, ऊपर से इन्होंने अपना ज्ञान देके उसका मन भी शांत किया रहता है, तो बहुत खुश हो जाता है। और कहते हैं कि उन्होंने जो अपना जो लॉटरी लगा था उसमें से आधा पैसा ना, बोलते हैं हम लोग आपके चर्च के लिए आपको दान देते थे, आपको आप कैसे भी उसको यूटिलाइज करो। और स्टोरी गोज लाइक दिस कि कहते हैं वो सुन के ना वो फादरी वहां पे ही डूब हो जाता है। एक्साइटमेंट, हर्ष, वो जो मुझे इतना मिलने वाला है पैसा, उस बात को सुन के उसको ले नहीं पाते ठीक से ना। बोलते हैं ना हम लोग समटाइम्स ना इन बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में, एक्साइटमेंट में, बहुत से वो जोश में ना वो हम लोग होश खो बैठते हैं, वी टेंड टू प्रोबेबली डू मिस्टेक्स आल्सो। हम लोग बहुत सारे एक्साइटमेंट में हम लोग किसी को दुख भी दे बैठते, कुछ तो शब्द बोल देते हैं, होश में होश नहीं रहता, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो बोलते जो संतुष्ट रहते हैं, द वन हु आर कंटेंटेड इन लाइफ, उनमें ना वो ज्यादा बहुत ज्यादा हर्ष दिखाई देता है, ना किसी चीज के प्रति असमाधानता दिखाई देती है जो उनको प्राप्त हुआ है जीवन में। अच्छा, जो प्राप्त नहीं हुआ है, उनको भी चाह है, अभी तक नहीं मिला, तो उसके प्रति भी ऐसे बहुत सा लगाव नहीं रहता कि चलो भाई ध्यान करने बैठ गए और फिर भी मन में वही वही आ रहा है। हाँ? या सोने का वक्त हो गया है, फिर सो भी नहीं पा रहे, फिर भी उसी के बारे में सोच रहे। मन में कोई फ्यूरिशनेस नहीं रहता, कोई क्रेविंग्स नहीं रहती। उसके मतलब विषाद बोला गया इसको, मन में वो विषाद नहीं रहता है किसी भी चीज के प्रति। तो ये किन चीजों के प्रति हो सकता है? ये तो लोगों के प्रति हो सकता है, किसको तुम्हें पाना है, अक्सर प्रेमियों के लाइफ में यह दिखाई देता है ना, तो उनका प्रेम मुझे पाना है ना, ये बहुत होता है। आई लव यू, यू लव ओनली मी, यू डोंट लव ना, तो किसी और के पास जाओ ही मतलब पजेस करने लगते हैं लोगों को। तो उनको जो ऐसे कुछ प्राप्त नहीं होता है उसके प्रति भी उनको पाने की ऐसी बहुत क्रेविंग्स नहीं होती है उसके प्रति। तो वो भी एक लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि संतुष्टि का, जब अपनी बुद्धि, अपना मन इस तरह से शांत हो जाता है, व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट शम, दैट पीस ऑफ माइंड, अपने जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं, तो फिर संतुष्ट होते हैं ऐसे लोग ना, कंटेनमेंट होता है उनके जीवन में, वो तृप्ति का हर पल वो लोग अनुभव अपने जीवन में करते हैं। और फिर आगे विशिष्ट मुनि हमें बताते हैं फिर ऐसे लोग के क्या लक्षण होते हैं जब वो उन्होंने ऐसा प्राप्त कर लिया होता है। तो बोलते जैसे ही आप उनके सानिध्य में जाओ ना, तो आपको उस आनंद का, उस जॉय का, हाँ, वो शांति का अनुभव अपने आप होने लगता है, बिना वजह से। या आप भी खुश होने लगेंगे, बिना वजह से आपके जो सारे प्रश्न है वो ड्रॉप हो जाएंगे। हाँ, तो अपने जो गुरुदेव है, अपने जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, या और भी कोई गुरु होंगे आपके, तो जब हम उनके सानिध्य में चले जाते हैं तो कैसा मन शांत हो जाता है, कैसा मन बिना किसी वजह से प्रफुल्लित हो जाता है, किस आनंद का हम लोग उनके सानिध्य में अनुभव करते हैं, है ना, करते हैं ना। यू ऑल एग्री? नो? यस, एब्सोल्युटली। तो वही होता है कि जब ये ऐसे संतुष्ट जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में आ जाते हैं, उनके साथ हम लोग जाते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं, तो वह शांति का अनुभव भी हमें होता है। तो यहाँ पे जो बुद्धा जो होते हैं, अपने महावीर होते हैं, उनके भी ऐसा कहा कि उनके औरा में जब लाग लोग जाते तो 2-2 3-3 किलोमीटर तो हिंस प्राणी भी अपनी हिंसा छोड़ देते थे। तो वो शांति का अनुभव हमें, वो आनंद का अनुभव हमें प्राप्त होता है उनके सानिध्य में। ऐसे कुछ लक्षण संतोषा के बारे में बताए गए। Now let us also look into the fourth aspect, four moksha के चार द्वार में, that is about the sadhu संगति।
Now it has been said that it is many people are in the pursuit of being with the company of such people who are walking on this path, who are walking on this, they walk the talk, आचरण करते हैं, आचार्य उनको हम लोग कह सकते हैं. The one who are really established in this Shama, this Santosha, they have attained that vichara through their karma, they have attained a state. And you find such people, they are involved in doing serving other people, they are doing seva. So it is very difficult to get a company of such people. वो बोलते कृपा से ही आती है, ऐसे लोग अपने जीवन में आते हैं. तो it is very very important for to be in a company of such people. It is also said, the man is known by the company he keeps. So that is one more aspect of sadhu sangha. But let us apply that in our practical life, adhyatmic life, spiritual life. So we can say that kind of getting that kind of person, and that thing is very rare. But let us look at in a worldly matter. Suppose you want to do IAS, or you want to do doctorate. No, if you are in the company, जो हम लोग नहीं रहते हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, we used to form a study group. जैसे हमने अभी भी देखो spiritually अध्यात्म मार्ग पे भी we have formed this study group. Why it's happening? Because we all are together. We are doing that sadhu sangha here. We are doing that sat sangha here. Na? Company of people who are like-minded. No? So that is very important aspect, even in our day-to-day routine life. That if you are a student, be with the company of the people who are studying. If you are a student and you happen to go with the people who are trekkers, so your mind will get attracted to that. What will happen to your studies? I'm not against trekking. I'm not saying, but if you're too much involved in sports, or if you're too much involved in trekking, if you're doing that as a hobby and for a little bit of period, it's very good. No doubt about it. Having all these things, doing your yoga, pranayama, playing sports, music, these are all absolutely good. No doubt about it. But if you are suppose you're taking an admission in engineering, or you're pursuing your IAS, or if you're pursuing your doctorate, you're pursuing your PhD, all these things require a devoted time. You have to give that time, and then all these attractions are also there. There is a Netflix, there is a movie, there is so many worldly attraction. 5 विषयों से जो उत्पन्न होते हैं वो विषय, और उनसे उत्पन्न होने वाले जो क्रेविंग्स, वो सारा तो है ही आजू बाजू में. But then that would distract you from your goal. That will distract you from your focus. So that is the reason, say, even in worldly life, whatever you want to achieve, be in the company of those people. That is what is sadhu sangha. The one who is probably already an IAS officer, the one who is probably a doctor. And if you be in the company of that group, इसलिए कहते हैं ना, if you want to be on management, you want to be leader, follow that group. Even on LinkedIn, we say there are so many groups. You are interested in artificial intelligence, you are interested in blockchain, join those groups. Be in the company of those people. They keep talking about the same thing. The students who are the student of biology, they will talk about the same. The people who are student of management, they will talk about the same. Be in the company of those people. That helps us. Otherwise, you will feel distracted. So that is another aspect of this sadhu sangha, is what we can see. So कहते हैं ऐसे लोगों का जो एटलीस्ट स्पिरिचुअल पाथ में गेटिंग अ कंपनी ऑफ सच पीपल इटसेल्फ दिस दुर्लभ है, इसको बोलते दुर्लभ होता है. और अपने पुण्य कर्म से, अपने जो कर्म है जो भी है, और गुरु कृपा से यदि ऐसे साधु का संग अपने जीवन में मिल जाता है, तो बोलते उनको कभी छोड़ो मत. Never ever leave them. We are so fortunate that today the divinity is Triguna Sahit. He is there in this Sadeha body में, अवतार के रूप में अपने सानिध्य में आए हैं. There are so many good people around. that of being family बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है इसे, the one world family. So this entire world belongs to me, गुरुदेव कहते हैं. So we have got such a good opportunity. कितना कुछ पता नहीं क्या होगा, या गुरु कृपा कितनी होगी ना. We are so fortunate to have this in our life. So just उनकी उंगली पकड़ लो, उनके वचनों के अपरा शक्ति से जो ज्ञान है, जो हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो चलता रहेगा. पता नहीं कितने जन्म और लग जाएंगे सबको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए. लेकिन वो तो गुरु का सानिध्य जो मिला है,
जो उनके प्रति अपना डिवोशन है, भक्ति है, उसको यदि बरकरार रखते हैं तो पराशक्ति से मिलने वाले नॉलेज के लिए ना किसी का बंधन है, ना कोई समय की पाबंदी है, ना उसके लिए कोई बहुत ज्यादा क्षण लगते हैं। वो बोलते हैं ऐसे, जस्ट लाइक दैट you go and sit at do Sudarshan Kriya and you experience the bliss, you experience the santosha, you experience the shama। सारे के सारे जो है उनके सानिध्य में, उनके वचनों पे चल के बाकी के मोक्ष के चार द्वारपाल अपने आप आपके पास आ जाते हैं। So that is the importance of having the sadhu sangha in life, having the being with the truth, being in the company of a truth, satsanga, have that satsanga in life, be with the company of the good people. So that is also given a very very important role here. So that is about the fourth मोक्ष के जाता। इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। तो फिर आगे चल के कहते हैं कि जो अपना मोक्ष का जो चौथा द्वारपाल है वो है साधु संगति। तो कहते हैं कि यह साधु संगति पहले तो अध्यात्म मार्ग पे बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा कठिन होता है, आसानी से ऐसे लोग नहीं मिलते अपने जीवन में। तो बोलते हैं कि आपके जीवन में ऐसे लोग यदि आ गए हैं तो जरूर जरूर आप उनका संग मत छोड़ना, क्योंकि बाहर के जो अट्रैक्शंस होते हैं उसमें अपना वो संग छूट जाना पॉसिबल होता है। तो जरूर जरूर आप उनको पकड़ के रखिए। अच्छा, क्या यह सिर्फ अध्यात्म मार्ग पे भी होता है क्या साधु संग? क्या अपने दैनंदिन जीवन में इस संगति का महत्व नहीं है? नहीं नहीं, तो बोलते वहां पे इसका बहुत महत्व है। आपके जो भी गोल्स है अपने लाइफ में, आपको स्पोर्ट्स में प्रावीण्य चाहिए, आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको पीएचडी करना है, इंजीनियरिंग में आपको महारत हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, किसी भी क्षेत्र में आप जो अपना गोल, जो अपने जीवन का उद्देश्य है वो हासिल करना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि बी इन अ कंपनी ऑफ दोज ग्रुप ना। आप उन लोगों से ही जो लाइक माइंडेड पीपल है, जो उसी राह पे चल रहे हैं, उनके ही सानिध्य में आप रहो। तो क्या होगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे ना। अपने जो मित्र होते हैं ना, कई बार मित्र बेचारे जानते नहीं कि वो हमें एक्चुअली अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, देखो खुद ही नहीं जानते हैं। तो उनको दोष मत देना, उनसे झगड़ा वगड़ा मत करते बैठना। बट होते हैं ना कि कुछ अपने जिंदगी में ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा अपना हाथ पकड़ लेते हैं, हमेशा अपने को खींचते हैं, अरे यार नहीं नहीं डोंट गो यार, छोड़ यार मूवी बाद में, एग्जाम आ रहा ना, चल लेट्स स्टडी। उनके सानिध्य में देखो कैसे ना, आपके जीवन में, सबके जीवन में ऐसे आजू बाजू में लोग होते जरूर है। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो संगत भी होती है, कुसंगत भी होती है। कुसंगत भी अपना विवेक विचार, जो मोक्ष का जो दूसरा द्वार पर आपको बताया ना, उसमें भी वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको भी हम लोग जरूर देख लेना, उसको भी विवेक कि डिस्क्रिमिनेट करना भी आना चाहिए ना, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो कुसंगति में ना फंसना, सत्संगति में अपने साथ बनाए रखना, और जो अपना जीवन का उद्देश्य है उस तरह के ग्रुप के सानिध्य, उन लोगों के साथ हमेशा रहना। जो लोग मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है वो अपने लीडर्स के साथ, मैनेजमेंट की जो कम्युनिटी ग्रुप ऐसे बनते हैं ना, लिंक्डइन पे देख सकते हो, जिनको ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड है, आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो भी सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है, उस सब्जेक्ट के लोगों के पास आप बने रहो उनके साथ ना, वही साधु संगति है, वही ना। बट बोलते कि है मटेरियल वर्ल्ड में जो अपने को अचीव करना है, वो अचीव करते करते भी जो मोक्ष वाला जो है, जो अपना पुरुषार्थ का जो चौथा जो अपना स्तंभ है, उसे मत छोड़ना। उसके प्रति भी अपना, हम लोग का क्यों आए हैं यहाँ पे, अपने जीवन का पर्पस क्या है, क्या हम लोग सिर्फ ये खाने पीने के लिए, शादी करने के लिए, सेक्स करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, यही सब कुछ करने के लिए क्या? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट। इसको गलत तरीके से मत देखना। अक्सर लोग ये भी गलती कर देते हैं ना, उसको गलत नजर से देखते हैं। नहीं, गलत क्यों है भाई, वी आर बोर्न आउट ऑफ दैट, उसमें गलत क्या है? वो भी ठीक है, वो भी एक जीवन का अंग है। बोलते हैं ना गृहस्थाश्रम होता है, तो वो भी एक आश्रम है, उसको भी हम लोग पूरी तरह से निभाए, नथिंग रॉन्ग इन, बट उसके पीछे उसमें अड़क नहीं जाना। यू नो द पर्पस इज हियर, एज अ मनुष्य जन्म मिला है तो वी हैव दिस आल्सो। तो वो अध्यात्म मार्ग पे जो साधु संगति होती है, वहां पे भी ऐसे लोगों को ढूंढ के उनके सानिध्य में बने रहना बहुत बहुत आवश्यक होता है। देखो ना गुरुदेव ने कैसे, कितना काइंड इनफ, ही डिडंट से दैट ओ आई ओनली वांट टू बी गुरु, ओनली माय नेम, ओनली माय फेम। नहीं, देखो कितने लोगों को ऋषि बना दिया अपने जीवन में चलते चलते। देख के ब्रह्मचारी, ऋषि, स्वामी जी,
गुरु बना रहे, कितने सारे टीचर्स अपने हैं, हाँ, कितने सारे स्वयं सेवक है। 155 देशों में पहुंच गया है, 45 करोड़ लोगों तक ये पहुंच गया है। नो, बह रही है गंगा, बहती गंगा में आप भी जुड़ जाओ, आप भी हाथ धो लो। सो अमेजिंग, बी इन द कंपनी ऑफ सच पीपल इन लाइफ। कहते ऐसे लोगों के सानिध्य में आप जरूर जरूर रहिए। यहाँ पे अपना मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण समाप्त होता है। कल से हम लोग उत्पत्ति प्रकरण की शुरुआत करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर वेयर विल गेट टू नो अबाउट मोर अबाउट हाउ दिस एंटायर, दिस some of the curious thing now which we have been see how this entire creation is there. No, there are questions like what is real, what is unreal. क्या सत्य है, क्या असत्य है, नो, क्या यह दिखने वाला जो माया है वो सत्य है या कुछ और है। नो, all these things, no, that will touch upon one by one with उत्पत्ति प्रकरण जो है अपना तीसरा जो चैप्टर है उसे हम लोग ग्रहण करेंगे। इसका हम लोग वाचन, श्रवण, मनन, पठन, चिंतन, हाँ, जो भी है वो सब करेंगे कल से। स्टार्ट ऑन इट टुमारो, दिस योर टाइम। इस सत्र को हम लोग चर्चा के लिए कर देते हैं। आपके मन में कुछ प्रश्न है या आपको अपने आप को व्यक्त होना है, आपने जब इसको पढ़ा होगा उसके बारे में आपको कुछ बताना है, तो जरूर जरूर आप अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। हम लोग सब सुनने के लिए लेकर आ रहे हैं। ओवर टू यू ऑल। यस, कुसुमताई आप शुरू करेंगी? कुसुमताई है अपने साथ? बिल्कुल जरूर कुसुमताई, आप शुरू कर, जरूर अपना वीडियो शुरू कर ले कुसुमताई। हाँ, कुसुमताई probably around है या नहीं पता नहीं, तो संगीता जी let us start. Yeah, okay. So what I got from Santosha, it's very beautiful. If you divide the word into two parts, that is sun and tosh. So sun means completely, entirely. That is what it means, some. Tosha. Tosha means the acceptance, the satisfaction, and the contentment of it. So that is a very beautiful thing. And it is not the end product, you know. It is a journey that we are going to through. It is a practice that we have to do every time. And how does this get? There is no feverishness in this, you know, no forcing, but just relax, sit at the back on your chair, just surrender and let it unfold, you know. Give it to the master to give you whatever you want, no? The best. He will do the best. So that is what is Santosha. So no feverishness, nothing that I want this, I want this, I want this. No, just relax. Okay. And then it is a journey of contentment from moment to moment, and experiencing joy, beauty, surprise, that wow effect. Oh my, wow. You know, having experienced that effect, it is so beautiful, I tell you. You don't need anything. But then suddenly when it comes to you, don't you have that wow effect? Just try it out and see. It comes out, you will feel that joy, that fountain of joy will come out from you, you know, from within. That is what is called Santosha. And then what happens? You're always in gratitude, isn't it? If you are in Santosha, if you are just content that, you know, that inner glass is just filled up, nothing more, then you become in gratitude. And then in that gratitude, there are swirls of chaos also and swirls of boredom also sometimes. So it's both, but it's okay. But then still you are with that, you know, that is the point actually. And then liberation only when all the leaves fall. So that saint starts dancing. Why? Because he knows there will be one season called as autumn, and where all the leaves fall at one shot. So he starts dancing there only. See the thinking of it, see the surrender what he had, and he starts dancing in that. Yeah. So that was a very good story. And then we go, if you have Santosha, that calls for dedication and surrender. So you have dedication also and surrender. And then being radically present, whether you're getting it or you're not getting it. That is not the point at all.
You get it, maybe, or maybe you don't get it. You know, there's a saying that if God wants to like answer your prayers, and sometimes he doesn't answer your prayers. So when he doesn't answer means he's going to give you something more best than what you're asking. So just relax. That's what it says. Okay, and then you get the true freedom and contentment begin to find that way to us when we see that that they are with us, they are neutral and not spend so much energy. We don't use our energy manipulating the things. You know, we don't use that energy there. How much energy is drawn in manipulating those things when you want that one thought, that one seed which comes, you know, as a thought, when it starts manifesting, so you need to spend all your energy in that to manipulate also. But with Santosha, you don't do all that. You're just relaxed. Okay, good, everything. So this is what it is. And then you come to your calm center when you are in the Santosha. It opens up your heart, of course. It opens up your heart in gratitude to whatever we have, and practically, paradoxically, whatever we are not having or not, we are seeking for it. So in both the ways, it's content. And then that gratitude is there within us. That gives you the power. That gratitude gives you the power to practice more of the spirituality. And it protects us from our own pettiness and smallness. That is a very beautiful point. So the more you are in Santosha, no, you don't go behind those petty things. Your bowl is not like this anymore. You are the giver. That is such a big transformation when you have Santosha within. And with these words, thank you, Someshwarji, for giving me the chance to talk. Thank you. Jai Gurudev. We are so grateful, Sangeeta ji. It just went on in my, you know, so I just noted down when you were saying Santosha. Very nice, Which amazing. ultimately you wake up to do whatever the day brings, you know, it's a beautiful line. See, waking up to whatever the day brings without seeking or avoiding. मतलब हम नहीं कुछ चाहते हैं और ना ही कुछ हम resist करते हैं, but we are in that flow. It's such a beautiful thing to be in Santosha, isn't it? So you're not seeking anything, you're not avoiding anything. You're just taking it as it comes. Right? Very nice. Very good understanding and very good explanation. Very good. Thank you. We have Sachinji with us. Sachinji, would you like to say a few words? थैंक यू सोमेश्वर जी, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया सभी पॉइंट्स। मैं थोड़ा संतोष और ये सत्संग के बारे में जस्ट कुछ बोलना चाहता हूँ। संतोष ये जो अभी या कंटेनमेंट जो है वो मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग से इट डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल थिंग्स। इट इज ये जो आनंद है इसका कोई कॉज नहीं है, वो कंटेनमेंट है। क्योंकि हम देयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड कंटेनमेंट। Pleasures are short-lived and they are dependent on other external objects. But the contentment is within and that is without cause. So that is the main difference. First thing, and contentment, I think it's the byproduct of remaining within yourself. So the contentment is, it will come as a natural tendency. Once you start experiencing happiness within. I want to give a couple of examples or just things here. Our late President APJ Abdul Kalam, he when he became a president, he was just carrying 2 bags while entering the presidential house. And after his tenure, when it's completed, he was again having 2 bags only. Though president gets lots of awards, lots of gifts and these things, but he donated everything because
there is no want as such in his mind. Whatever he was coming with 2 bags, he was going with these 2 bags. So that is it. And another example I want to give is late Sushma Swaraj ji. I heard that when things happened according to her wish, or she was felicited or given some awards or something, she used to say, it's Krishna Prasad. It's a prasad of Lord Krishna. But if anything happens against his mind, or something disturbing happens, or something is something happened which is not according to his wish, her wish, she used to say, it's Krishna Ichha. That is desire of Krishna. See, in both situations, she remained calm and peaceful. So that is it. And मैं यहाँ पे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ. एक राजा था और उसका एक मंत्री था, जो प्रधान बोल सकते हैं. तो वो राजा एक बार अपने गार्डन में बैठ के जस्ट बातें कर रहा था, और वहां पे वो मंत्री भी था. तो उसने एक फल काटने के लिए वो चाकू लिया, और गलती से उसका एक उंगली कट गया. तो वो मंत्री उधर ही खड़ा था. तो वो बोला कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. तो राजा को बहुत गुस्सा आया, उसका उंगली कट गया और ये ऐसे बात कर रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ. तो वो बोला कि इसको तुरंत प्रिजन में डाल दो, कारागृह में डाल दो. और फिर कुछ दिन बीत गए और राजा को शिकार पे जाने का शौक था, तो वो अकेले शिकार पे गया. और जब वो शिकार पे गया, तब गलती से अंधेरा हो गया, और वहां पे कुछ वो आदिवासी लोगों ने उसको पकड़ लिया, और वो देवी के लिए बलि का प्रसाद चढ़ा रहे थे. और ये राजा को उन्होंने देखा कि ये राज लक्षण है, अच्छा पुरुष है, 32 लक्षण सब है उसमें, तो इसको हम बलि देते हैं देवी को. लेकिन जब उन्होंने सब चेक किया, तो उनको पता चला कि इसका उंगली कट गया है. तो जो देवी को बलि देते हैं उसका पूरा शरीर अच्छा होना चाहिए, निरोगी, ऐसा मानते हैं. तो उन्होंने फिर उसको वो छोड़ दिया उसको, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए. तो फिर राजा फिर अकेला ही वापस आ गया इसमें अपने राजधानी में. और जब उसने फिर ये किया, सोचा, और वो बोला कि वो प्रधान को छोड़ा जाए, वो मंत्री को कारागृह से. तो उसको कारागृह के वो मंत्री को उसने छोड़ा, और उसको बोला कि आपकी वजह से मेरे प्राण बच गए, मतलब आपने बोला था वो सही था. तो वो मंत्री बोला, और उसने सब कहानी सुनाई वो मंत्री को, ऐसे ऐसे हुआ वगैरह. तो वो मंत्री बोला, नहीं महाराज, मैं भी आपके आभार मानना चाहता हूँ. तो बोला क्यों? तो बोला, महाराज नहीं तो आप मुझे साथ में लेके जाते और मेरी बलि चढ़ जाती. तो जो भी हुआ वो अच्छा हुआ. ऐसा है. और सत्संग का एक मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ. एक बार नारद मुनि ऐसे ही जा रहे थे, और कुछ वो बगीचे से में घूम रहे थे, तो वहां पे कुछ फूल मिले. तो वो फूल पे कोई एक कीटक था. जब वो कीटक को उन्होंने देखा, तो कुछ क्षणों में वो कीटक मर गया. फिर वो उनको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर कुछ बोले नहीं वो. फिर दूसरे गांव में गए, तो वहाँ वो एक ब्राह्मण के उधर गए, तो वहाँ पे एक गाय थी. तो वो गाय भी उनको देख के मर गई. तो बोले ये क्या हो रहा है ऐसा. फिर बाद में वो दूसरे जगह पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा. तो वो ब्राह्मण उनको बोला कि आइए महाराज, आप मेरे यहाँ प्रसाद भोजन कीजिए. तो वो बोले, आप कौन हो? तो ब्राह्मण बोला कि मैं वही कीटक हूँ जिसको आपने देखा था, और उसके बाद आपने दूसरे जगह पे मुझे गाय के इसमें देखा, तब भी मैं वहाँ पे मेरा पुनर्जन्म हो गया, और मैं अभी अच्छे ब्राह्मण के इसमें हूँ, और मैं अभी सब वेद वगैरह शास्त्र पढ़ रहा हूँ. ये केवल आपकी सत्संग की वजह से हुआ.
आपकी जब मुझे दृष्टि पड़ी तभी मैं ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे में हो गए। तो इतना महिमा होता है सत्संग का। जस्ट एक नजर से भी आदमी कहाँ से कहाँ आ जाता है। बस इतना ही बोलना था। Very nice. वेरी नाइस सर। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उनको ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाउ आर द थर्स्ट फॉर द साल्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड। जो मुक्ति के मार्ग पे हम लोग चलते हैं तो उसका जो थर्स्ट है उसको कैसे सेटिस्फाई करें। बने रहने दो ना फायर, वो फायर बने रहने दो, वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा। एटलीस्ट हैव दैट मुक्ति मोक्ष, वो जो मुमुक्ष जो होता है, मुक्ति का चाह जो होता है ना, वो हो जाएगा। देखो कौन कौन छोड़ सकता है किसी चीज को। कि किसी गरीब व्यक्ति को बोलो ना, उसको जाके बोलो तुम पैसा कमाना छोड़ दो करके, कैसे छोड़ेगा वो। उसको तो कितना भी ज्ञान दे दो, उसका कितना भी गीता बता दो, कुछ भी शास्त्र बता दो, क्या छोड़ेगा क्या वो। अरे भाई छोड़ोगे तुम, जो तुम्हारे पास तुमने अर्जित किया है उसको तुम छोड़ोगे ना। जो तुम्हारे पास है ही नहीं उसको छोड़ने के क्या नाटक करोगे क्या फिर। नो, यू जस्ट एक्ट ऑफ ड्रॉपिंग इट। तो बोलते नहीं नहीं, पहले वो पात्र तो बन जाओ उसके, वो अर्जित करने के पात्र बन जाओ। और वो जब बोलेगा, कोई आके बोलेगा आपको कि जा तुझे मैं मुक्त करता हूँ, तो बोलते आई हैव अटेन्ड दैट लव नाउ, मैं इतना भक्ति में इतना डूब चुका हूँ। तो फिर वो गुरु की इच्छा, अभी मेरे को लाना है उनको साथ में, तो लाने के लिए आई एम रेडी ना। मुझे मुक्ति की मोक्ष की भी इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं है। आई एम ओके, आई एम इन लव नाउ, मैं भक्ति में हूँ। तो बोलते हैं आई डोंट केयर, हैवंट यू एक्सपीरियंस दिस, इवन द नॉर्मल लव आल्सो व्हेन यू एक्सपीरियंस इट वी डोंट टेंड टू केयर अदर थिंग्स व्हाट पीपल विल से। अक्सर देखो, इसका मतलब स्वैराचार करना ये नहीं होता है, अभी लेट अस बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अपना कुछ भी कर लेना ये नहीं है बात, बट लेकिन आइडिया इज दैट कि देखो हम लोग वो भक्ति में होते हैं ना, बाकी की चीजें मैटर नहीं करती है। द वन हु हैव अटेन्ड भक्ति, हु केयर्स अबाउट लिबरेशन, वो स्थिति आ जाएगी तब तक। हाँ डेफिनेटली हाउ दैट, रहो उसके पीछे। मुक्ति का और मोक्ष बड़े बड़े मुश्किल से मिलती है कि कोई लोग उसके पीछे भागते हैं, अदरवाइज तो लोग तो बाकी चीजों की तरफ ही भागते हुए दिखाई देते हैं। सो इफ इट ऑल यू हैव गॉट at one point of time, I want to be liberated, I want to be free from all these things, please follow it, then ultimately come to know anyway you are free only, but till then keep following it. उसको छोड़ो मत, तो बहुत बड़ी चीज है, उसको मत छोड़ो। देयर इज अनदर क्वेश्चन। ये सिर्फ मन का ये है। अगर आप अपने आप को बंधन में समझते हैं तो आप बंधन में हो। अगर आप खुद को बंधन में नहीं समझते तो आप बंधन में नहीं हो। जस्ट वो जो भावना है बंधन में नहीं हो, वो उसको दृढ़ करो बस। हाँ, लेकिन तब तक चलते रहो तब तक सडनली ऐसे नहीं हो जाएगा। फील करने दो बंधन। बोलते बंधन, गुरुदेव बोलते हैं ना, बंधन इज अ ब्लेसिंग। बोलते देखो गाय वगैरह वगैरह बाकी प्राणी मात्रा, दे डोंट गेट बोर्ड, एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग टू, इट्स अ बोन, वरदान है ह्यूमन के लिए, दैट दे गेट बोर्ड बाय डूइंग सेम थिंग। एटलीस्ट वो दिया हुआ है कि जा भाई बोर हो जा, बोर होने के बाद तुझे लगेगा कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, इट्स अ बोन। और एक ये है कि 100 में से बहुत मतलब 99.99% लोगों को लिबरेशन चाहिए ही नहीं। लिबरेशन इज एक्चुअली योर डेथ ऑफ योर अहंकार। सो कौन चाहेगा कि मेरी डेथ हो। और मतलब कैसा है कि अपने को सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, संसार भी चाहिए, ये भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। मतलब वो कोशिश जो पापड़ वगैरह वैसा एक प्लेट में वो भी रखना है तो अच्छा है। ऐसा ही सबका फीलिंग रहता है। बड़ा आश्चर्य है, ऐसा होता है। दिक्कत लगता है ना कि ऐसा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एखाद्याला दुःख, मनाविरुद्ध परिस्थिती असेल तर श्रम, संतोष, विचार कसे सकारात्मक ठेवायचे। किसके जीवन में दुख नहीं है बताओ मुझे पहले। नो, द क्वेश्चन हियर इज दैट इफ somebody is experiencing the sorrow in their life and the situation is not as per their want, जीवन में परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति उसको कह सकते हैं, या जीवन में कुछ दुख है, तो फिर कैसे फिर उसको हम लोग पॉजिटिव तरफ लेके जाइए, प्रश्न है। तो देखो सिंपल सी बात है कि
यदि आपने अनुभव नहीं किया कि दुख क्या होता है, तो सुख की वैल्यू पता चलेगी कि आपको? नहीं पता चलेगी। हाँ? अच्छा मुझे बताओ कि किसके जीवन में सुख नहीं है और किसके जीवन में दुख नहीं है? देख लो, आजू-बाजू में घूम के 10 लोगों से बात करके देख लो। पता लग जाएगा कि अरे यार सब सेम ही है, सब एक ही नैया में बैठे, एवरीबॉडी इज इन द सेम बोट, नो, एवरीबॉडी हैज एक्सपीरियंस दिस, नो, अपर अप्स एंड डाउन इन लाइफ। सबके जीवन में सुख और दुख आया। और एक एस्पेक्ट लगा लेना, क्या हमेशा दुखी दिखेगा आपको लोग? ऑलवेज? क्या जो सुखी थे वो हमेशा ही सुखी रहते हैं क्या? नहीं, चेंज होता है। इट्स चेंजिंग, दिस बॉडी इज चेंजिंग, योर थॉट्स आर चेंजिंग, योर सिचुएशन इज चेंजिंग, योर परसेप्शंस आर चेंजिंग, सब बदल रहा है। तो जब सब कुछ बदल ही रहा है तो क्या आपका दुख वैसे ही रहेगा? नहीं। क्या परिस्थिति वैसे ही रहेगी? नहीं, बदलने वाली है फॉर श्योर। नो, जिंदगी वो डायरेक्ट करंट की तरह नहीं है, इट्स लाइक दैट अल्टरनेट करंट नहीं होता है, वो फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो अप्स है डाउन है, अप्स है, वो इट्स अप्स एंड डाउन चलते रहता है ना। बट आर यू एबल टू स्माइल थ्रू इट ना? वो हमें आर्ट ऑफ लिविंग में सीखने को मिलता है। तो आपने जरूर किया है कोर्स तो आपको पता है, नहीं किया है तो भी आप कर लीजिए। गुरु है जीवन में तो जरूर पता रहेगा। कुसुमता इज देयर विद अस। कुसुमताई, वुड यू लाइक टू से समथिंग? कुछ कहना चाहती है? Can I say a small story relevant to this topic? Yes, yes, या श्योर, कुसुमता Yeah, इज just yes, just yes. अच्छा, I will just take अं, एक नारद मुनी एकदा जाताना शेतकरी स्वतःच ते काम करून मुलाबाळांना हे करून आणि व्यवस्थित राहत होता. शेतातलं काम करून व्यवस्थित. तर असं करता करता एक दिवस मग नारद मुनी तिथून जात होते. तर त्यांनी विचारलं की कुठे जातायत? तर वैकुंठाला, नारायणाकडे. तर त्यांना विचारायचं तुम्ही जाल तेव्हा की मी आता एवढं सगळं हे करतोय, देवाचं पण करतोय आणि माझं काम पण करतोय, तर मला भगवंत कधी भेटेल? ते म्हणाले, "ठीक आहे." ते जेव्हा गेले विष्णूकडे, तर तेव्हा त्यांनी हा प्रश्न विचारला. तर मग त्यांनी नारायणाने सांगितलं, की ह्याला झाडाला जेवढी पानं आहेत ना, तो तिथे शेतांमध्ये जे झाड आहे त्याच्या, तर त्याला जेवढी पानं आहेत, तर तेवढ्या वर्षानंतर मिळेल. असंच काम तो जर करत राहिला तर. तर मग तिकडून जेव्हा नारद मुनी पुन्हा येत होते, तर हा पुन्हा आणखी भेटला आणि विचारला देवाला, "तुम्ही विचारला का माझा प्रश्न?" तर ते म्हणाले, "हो." तर मग काय उत्तर सांगितलं, तर त्यांनी सांगितलं की जे सांगितलं ते. तर ते ऐकून आणि मग तो नाचायला लागला. भावविभोर होऊन आणि डान्स करायला लागला आणि देवाचं नामस्मरण करत तो अगदी हे झाला, ध्यानस्थ झाल्यासारखा हे करायला लागला. तर तेवढ्यामध्ये तिथे ते विष्णू येऊन आणि उभे राहिले. म्हणजे त्याला दर्शन पण झालं. तर मग नारद आश्चर्यचकित होतात. "भगवंता, तुम्ही तर मला असं सांगितलं होतं, की झाडाला जेवढे एवढे पानं आहेत, तर त्याच्यानंतर त्याला भगवंताचं म्हणजे भगवंत मिळेल. इतक्या ह्याच्यानंतर, इतक्या वर्षानंतर किंवा इतक्या काळानंतर आणि आता हे कसं काय शक्य?" तर मग त्यांनी सांगितलं, की तुम्ही एका क्षणामध्ये मुक्ती मिळवू शकता. तर कशी? तर असं आनंदित होऊन आणि भगवंताचं नामस्मरण तुम्ही त्या जेवढा वेळ केलं, पण ते श्रद्धेने, विश्वासाने आणि ह्याने केलं. तर तेवढ्या ह्याच्यात पण म्हणजे संतोषाने मुक्ती मिळू शकते. तर हा जो त्याला संतोष झाला, त्या जी परिस्थिती, कारण त्यांनी उत्तर सांगितलं होतं तेवढी पानं, झाडाला पानं भयंकर असतात, खूप सारे असतात. तेवढे वर्ष म्हणजे आपण म्हटलो असतो की दुःखी कष्टी झाले असतो, पण नाही. दुःखी कष्टी न होता संतोष झाला आणि तो भावविभोर होऊन आणि नाचू लागला भगवंताच्या ह्याच्यात आणि त्याच्यातच त्याला त्याची समाधी, ध्यान लागलं. तर अशी पण संतोषाची कहाणी आहे. धन्यवाद. खूप छान कुसुमताई. आज ही स्टोरी आपल्याला 3 भाषेमध्ये ऐकायला मिळाली. तर इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में बताया आणि ओके, आता ओके, ओके. कुसुमताईंनी मराठीतून पूर्ण केलं. पूर्णत्वास गेला आपलं मल्टीलिंग्युअल लँग्वेज.
खूप छान कुसुमताई, धन्यवाद. हाँ, धन्यवाद. संगीता जी भी कुछ स्टोरी बताना चाहते, जरूर संगीता जी को भी सुनेंगे. किसी को कुछ बोलना है क्या? एनीबडी वांट टू से समथिंग या कुछ? हाँ, संजय जी भी बोल रहे. संजय जी, वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स? अभी इतनी बातें हो गई है, संतोष और सत्संग. संतोष तो हमें वो हर पल, मतलब आपल्याला प्रत्येक क्षणाला अनुभव आहे. आपल्या मनाविरुद्ध कुठली घटना घडते आणि तुम्ही शांत असता, समाज शांत, का म्हणतात ना, संतोषाची ती एक छोटीशी कल्पना होऊ शकते. असा संतोष आपल्याला कलेक्ट करत करत प्रत्येक ठिकाणी पुढे पुढे जावं लागेल. घरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हे अनुभवायला मिळतं. तुम्ही हलत नाही ना की संतोषाला सुरुवात झाली तुमच्या, हाच अनुभव आहे. बस, बाकी खूप छान संतोष जी. संजय जी. या संगीता जी, वुड यू लाइक टू से? Yeah. So once upon a time, you know, we can start from there. Yeah. एक आदमी था, remembering काशी भैया. हाँ, एक आदमी था, सोया, बहुत दुखी, you know, always questioning why me, मेरे को ही सब दुख मिलता है, all that way, you know. So he was sleeping. Suddenly, you know, he heard nature's, the divinity, that divine voice, you know. उसने कहा, एक आकाशवाणी होती है, उसने कहा देखो ऐसे करो, ये एक रुमाल लो, उसमें सब अपने दुख डाल दो, सब उठा के गांठ लगा दो और चलो, ये एक जगह है, यहाँ पे जाके रख दो. He was very happy. इसके जैसे आनंद क्या है, you know, like सब दुख उठाओ, डालो अंदर, करा जल्दी फटाफट, ये भी डाला, वो भी डाला, बीवी का, बेटे का, इसका, उसका, फाइनेंस, ये वो सब डाला, गांठ लगाया, चलना शुरू किया. जहां पहुंचा वहां पे जाके तो he saw many more पोटलीज were there, you know, many were there. बोला अरे भाई ये तो और भी अच्छी बात है, और सबको भी मतलब you know दुख से निवारण हो रहे हैं. So he also went and kept it and he turned, मुड़ गए कि मैं वापस जाता हूँ. इतने में आकाशवाणी होती है. क्या होती है? अभी तुमने एक तो छोड़ दिया है, तुम्हें जो पसंद है ना वो उठा लो, मतलब दूसरे किसी का दुख उठा लो, ठीक है, इट्स ओके. माय गॉड, ही वेंट इन अ शॉक. अभी मेरी एडजस्टमेंट मेरे बीवी से तो हो गई है, मेरे बच्चे तो मेरे सुनते हैं, मेरा फाइनेंस तो मुझे मालूम है क्या है, यू नो, मेरी सास के साथ तो अच्छा ठीक है कैसी भी है, लेकिन पट्टी तो है, या ऐसा है वैसा है, जो भी है, बहू के साथ है, ये है वो है. वी हैव एडजस्टेड आवरसेल्फ टू ऑल दैट, इजंट इट? Even though we are crying, but somewhere we have adjusted. So he ran and he took his own that pottery, you know. He said, ऐसा ना हो कोई और आ जाए जो मेरा ले जाए, तो it's better कि मैं ही ले लूं. मैं दूसरे से एडजस्ट कहाँ करूंगा, अभी दूसरे की बीवी से क्या एडजस्ट करूंगा मैं, या दूसरे के बच्चों से क्या करूंगा. So immediately he took it and he started walking back. और इतने में जैसे ही वो आता है, ऐसे वो उसकी आंख खुल जाती है. तो what is the moral of the story? दुख के लिए हम रोते हैं, लेकिन हमने देखा, उसने देखा कि वो सिमिलर दुख सबके पास है, यू नो, वही बीवी, वही बच्चे, वही सब दुख सबके पास है कोई. तो उससे हम तो एडजस्ट हो भी गए हैं, लेकिन अगर हम दूसरे के घर में जाके रहेंगे तो हम एडजस्ट हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे. सो व्हाटएवर वी हैव गॉट, बी संतोष इन दैट, be in gratitude, and you know, come to Yoga Vasisht and have your pure thoughts, that thoughts for your liberation, and then you see how it works. Isn't it, Someshwar ji? So दुख आना ही है, because it has to be there. नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? तो दुख आना ही है, दुख के बाद सुख है, सुख है. If you take a coin, you have to take both the sides, head and tails. You can't just say, I'll take the heads, I don't want the tails. Not possible, right? So you have to accept both and be in gratitude and go ahead with the knowledge. Yes,
Thank you. And I think so. It's all our, हम सब इतने enthused हैं और इतने energized हैं ना, है ना, कि nobody wants to go back also today. and luckily we all have had a dinner also. So even that is done, है ना? और कुछ बोलिए ना. वर्षा जी क्या बोलेंगे? वर्षा जी प्लीज कुछ तो बोलिए. वर्षा जी so dedicated, I tell you. 7:15 before that she comes. 7:10 only she comes, and she sits like that only. Please go ahead with your experience. या आपको जो भी शेअर करना हो प्लीज. मी हे जे सगळं नॉलेज ऐकतेय आणि स्वतःच्या लाईफशी जेव्हा पडताळून पाहते, तर तेव्हा मला खरंच हे पटतं की आपण या मार्गात आहोत, तर त्यामुळे आपले विचार वेगळे आहेत. आता थोडं साधंच उदाहरण द्यायचं झालं तर 2 महिन्यापूर्वी मला नागिन हा आजार झाला. तर माझी मैत्रीण म्हणाली, अगं बाई आता काय करणार, कसं होणार, कारण माझ्याकडे थोडं आर्थिक आणि मॅनपॉवर पण नाही किंवा काय नाही. तर मी तिला म्हटलं, अगं उलट हे चांगलं झालं, कारण काय म्हटलं, जर कोरोना किंवा इतर काही जर झालं असतं तर तो मला एकटीला सॉल्व्ह करता आला नसता. हा गुरुजींनी मला एकटीला सोडवता येईल असा पेपर पाठवलेला आहे आणि त्याच्याकडे मी खूप सकारात्मक दृष्टीने बघितलं, त्याच्यामुळे मी खूप लवकर बरी पण झाले. तर हा मला म्हणजे खरंच हे वाटतं की आपण आपल्या आयुष्याशी पडताळून पाहिलं तर नक्कीच आपण 2 पावलं पुढे आहोत हे नक्की पटतं आणि ते फक्त गुरुजींमुळेच. खूप छान वर्षाताई, खूप मस्त अनुभव शेअर केला. येस, ऍब्सोल्युटली. Blessings in disguise, it's a blessing. Yes. और किसी को अपना अनुभव शेयर करना है या कुछ मन में प्रश्न है तो पूछ लीजिए. शलाका जी इज देयर, अनाका जी इज देयर, भारती ताई, उम्बरकर ताई, सविता जी इज आल्सो देयर. जय गुरुदेव सोमेश्वर जी, सभी को जय गुरुदेव. ये योग वशिष्ठ का अलग ही वर्ल्ड हुआ है, मतलब अलग फैमिली हो गई है. घर वाले अलग कुछ करते हैं और मैं वो ग्रंथ लेके यहाँ वहां भागते भागते 8 बजे ऑनलाइन जाती हूँ. तो उसमें मुझे इतना आनंद मिलता है ना, वो चाहे जो करे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है. इतना आनंद पकड़ के रखना. वो ग्रंथ पकड़ के मैं घर में भागती रहती हूँ. मुझे इतना हंसते हैं सब कि क्या है इसमें. मैंने सोचा आपका टाइम आएगा, कभी ना कभी आएगा. सबका टाइम आएगा. एवरीबॉडी इज ऑन द पाथ. यस, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. ठीक है, तो हम लोग रुक जाते हैं. ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 10 ना, 8 ही मिनट बाकी है. आज का अपना यह सत्र हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. स्वल्प विराम लेते ताकि पुनः एक बार हम लोग कल मिल सके. जय गुरुदेव.